Hey, all the English buddies out there, welcome back to my channel English with Purvi. I hope you all are going through my videos, learning new vocabulary and even trying in your speaking skills. So, as in our past video, we had seen and also learned few of the verbs related to the action verbs of leg, as well as today we are going to discuss about the verbs which we can use in our daily basis, and it is also related to our hands. In the action where we use our hands, that verbs I had just collected for you that you can learn and you can implement while you are speaking. So let's begin. The first verb is bang. Bang, it means while you are just banging something on I have diary, and for that diary, अगर मेरे पास डायरी है और मुझे उस पर मैं ऐसे से उसे ठोक रही हूँ, so while I am banging on the diary, it means that I wanted to tell something. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि छोटे बच्चे जब वो डाइनिंग पे बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे, एंड दे आर विलिंग टू हैव फूड. सो जब उन्हें फूड चाहिए, दे जस्ट बैंग ऑन द डिशेस विद स्पून और फोक. सो वो फोक या स्पून से क्या करेंगे, वो डिश पे बैंग करेंगे, उस पर ठोकेंगे ताकि मम्मा जल्दी से आ जाए एंड मदर विल गिव देम फूड. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ब, इट इज beckon. beckon beckon मीन्स किसी को इशारे से बुलाना, राइट? जब हम किसी को बुलाना चाहते हैं, स्पेशली इन पब्लिक प्लेस, तो हम उसे आवाज नहीं लगाएंगे, ए ची 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 इधर आओ, नॉट लाइक दैट. एट दैट टाइम वी हैव टू यूज अ ब्यूटिफुल vocabulary and that is beckon. I beckoned my friend in the party. मैंने पार्टी में अपनी फ्रेंड को इशारे से बुलाया, राइट? The next verb is button. button button is verb. हमें सबको पता है, we call this all button. but अगर मुझे ऐसे कहना होगा आप ये बटन बंद कर लीजिए, then what should I have to say? then I have to say button up your shirt or button up your sleeves. आप अपने शर्ट के बटन बंद कर लीजिए या तो आप अपने स्लीव्स के बटन बंद कर लीजिए. So for that purpose we have to use button up your shirt or button up your sleeves. Moving towards the next, it is bury. It is bury. B-U-R-Y. It's not bury. It is bury. Bury means दफनाना, मिट्टी के अंदर किसी को दबा देना. So at the place like I have to say कि एक डेड बॉडी को लोगों ने मिट्टी में दफना दिया. So I can say for it a group of people have buried a dead body in the soil. ठीक है, एक लोगों के एक झुंड ने क्या किया, एक डेड बॉडी को जमीन में या मिट्टी के नीचे दफना दिया. So bury means दफनाना. The next verb is catch. catch catch मतलब पकड़ना. If I'll throw the bottle, you must have to catch it. If I'll throw the pen, you all must have to catch it. Catch मतलब पकड़ना, ठीक है? So moving towards the next, clap. clap clap. After my session, you all must have to clap, right? जब मेरा ये सेशन डन हो जाता है, आप सभी को तालियां बजानी हैं because you are learning English with Purvi, right? Moving towards the next verb, it is very beautiful verb and crack the knuckles. It is crack the knuckles. What does it mean by crack the knuckles? उंगलियां चटकाना. जब भी हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं, वो टक 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 आवाज आती है. At the same time, it is called crack the knuckles. While you are in public place, while you are studying something, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे? Don't crack the knuckles, right? आप अपनी उंगलियां मत चटकाइए. ये पब्लिक प्लेस है, स्पेशली while you are sitting in assembly, there is a pin drop silence, और आप वहीं पर उंगलियां चटकाओगे तो that is a bad habit. Okay? So crack the knuckles मतलब
मतलब उंगलियां चटकाना। नेक्स्ट वर्ब इज clench. clench, clench, clench का मतलब होगा मुट्ठी बांधना, राइट? clench your fist. अगर मुझे कहना है कि आप अपनी मुट्ठी बांध लो तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी, राइट? I will give you surprise if you will clench your fist. clench मतलब मुट्ठी बांधना। नेक्स्ट वर्ब इज crush. crush, crush का मतलब होगा कुचलना या मसलना। If I am crushing something, मैं किसी चीज को कुचल दूंगी या मसल दूंगी, राइट? For making सब्जी, many times I crush कसूरी मेथी to get the aroma of it. ठीक है, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो कसूरी मेथी को मैं क्रश करके उस सब्जी में डाल देती हूँ ताकि उसकी वो जो बढ़िया सी डिलाइटफुल अरोमा है वो आ सके। एंड माई वेज करी इट विल बिकम सो डिलीशियस। जो मैंने सब्जी बनाई है वो भी बहुत ही डिलीशियस बन जाए। मूविंग फॉर द नेक्स्ट एंड इट इज क्रम्पल। क्रम्पल, क्रम्पल का मतलब क्या होगा? हम जब किसी चीज़ को दबा दें तो उस पर सलवट बन जाती है, तो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड क्रम्पल। लाइक इफ आई हैव अ पेपर, ठीक है, ये मेरे पास पेपर है, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, बट मैं उसे क्रम्पल कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? उसका एक बॉल जैसा बन जाए और उसमें वो बहुत सारे क्रीजेस हो जाएंगे। सो व्हाइल दे गॉट ऑल द क्रीजेस बाय द प्रेसिंग इट, इसके लिए हम यूज करेंगे क्रम्पल। आई क्रम्पल द पेपर टू मेक द बॉल। ठीक है, मैंने पेपर को दबाकर उसे गोल कर दिया ताकि मैं उससे बॉल बना सकूं। ठीक है, सो आई क्रम्पल द पेपर टू मेक द बॉल। नेक्स्ट वर्ब इज ड्रॉ। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होगा कुछ चित्र बनाना। ठीक है, जब हम पेंसिल से छोटे थे, वी वर ड्राइंग समथिंग, इट डजंट मीन दैट के यू जस्ट ड्रॉ द पीपल, यू कैन इवन ड्रॉ सम ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मेरे सामने एक प्लांट है, सो आई कैन ड्रॉ दैट। ठीक है, सो ड्रॉ का मतलब होगा चित्र बनाना। द नेक्स्ट वर्ब इज ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। When you are drinking something, any of the liquid, it's always used with drink verb. आप कुछ भी liquid form जब पियोगे, that is called drink. I'm drinking water, right? Or I always drink fruit juice to be fit, right? Moving towards the next verb, it is drive. Drive. Drive means गाड़ी चलाना. When you are driving car, you can drive car, you can drive truck, you can drive van, but you couldn't drive bike because bike, bicycle and horse, इनके ऊपर हम सवारी करते हैं, ना कि इन्हें ड्राइव करते हैं। So bike, bicycle and cycle, उन्हें चलाने के लिए we must have to use one verb and it is ride. I'm riding bike, I'm riding my bicycle, or I'm today going for my bicycle ride. ठीक है, so drive is used for car, for truck, for van, right? But not bike, bicycle, or you can say that horse, right? Horse के लिए हम I'm driving horse नहीं कहते, I'm riding horse. The next verb is fiddle. Fiddle, fiddle means खिलवाड़ करना। फिडल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ से खेलने लगते हो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी टॉय। लाइक देयर आर मैनी पीपल हु यूजुअली प्ले द थिंग्स दे हैव। इफ आई हैव पेन एंड इफ आई स्टार्ट प्लेइंग विद इट, सो इट इज कॉल्ड आई फिडल विद माय पेन। आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी हैज द हैबिट, शी फिडल्स विद हर हेयर। शी ऑलवेज फिडल्स विद हर हेयर। वो क्या करती थी? वो हमेशा अपने बालों के साथ खेलती रहती थी, राइट? सो इट इज कॉल्ड फिडल। नेक्स्ट वर्ब इज फ्लिक। फ्लिक, फ्लिक इज द वर्ब विच वी कैन यूज जब हम उंगली से किसी चीज को उछालते हैं, वी कैन यूज द वर्ब फ्लिक। लाइक आई एम हैविंग द कॉइन एंड इफ आई हैव टू फ्लिक इट, आई विल फ्लिक एंड कैच, राइट? सो क्या होगा?
वो फ्लिक होगा, उसमें हेड्स होगा या टेल आएगा, ठीक है। बिफोर द क्रिकेट वी ऑल सी दैट दे फर्स्ट फ्लिक टू फाइनलाइज दैट what the team is going to be, the bowler or they are going to do batting, right? Moving for the next verb, it is fold. Fold. Fold का मतलब होगा घड़ी करना या तह लगाना, ठीक है, या मोड़ना। I have the paper, it is piece of paper और मुझे उसे फोल्ड करना है, मतलब मैंने उसे ऐसे फोल्ड कर दिया, राइट? जब हम उसे घड़ी करते हैं that is called fold. We can fold the paper, we can fold the clothes, anything which is movable उसे आप fold कर सकते हो, ठीक है। So fold मतलब घड़ी करना या तह लगाना। The next verb is hang. Hang. Hang का मतलब होगा लटकाना। जब हम किसी चीज़ को लटका देते हैं, like वॉल पे फ्रेम्स हम लटका देते हैं, ठीक है। If I have to say कि आप उस फ्रेम को वॉल पे लटका दो, hang the frame on the wall. तो हैंग का यूज हम लटकाने के तौर पे करते हैं। द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ब इज, हैंग का एक और मतलब होगा एंड इट इज कॉल्ड सजा देना, स्पेशली फांसी की सजा देना। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे हैंग। हैंग हिम टिल द डेथ, उससे उसके मृत्यु तक फांसी पर लटकाना। सो हैंग का मतलब होगा फांसी पर लटकाना। द नेक्स्ट वर्ब इज नीड। नीड मतलब गूंदना, आटा गूंदना, उसके लिए हम यूज करेंगे नीड। नीड द डो, ओके। आई यूजुअली नीड द डो इन द मॉर्निंग टू मेक चपाती। मैं हर रोज सुबह सामान्यतः आटा गूंदती हूँ चपाती बनाने के लिए, राइट। फॉर द नेक्स्ट वर्ब इट इज नीट। नीट, नीट का मतलब होगा बुनना। स्वेटर बुनते हैं ऊन से, yarn से। by using that my granny had knitted one sweater for me, right? My granny had knitted sweater for me. उन्होंने क्या किया, मेरे लिए एक बढ़िया सा स्वेटर बुन दिया था। Next verb is knock. It's knock. Knock. I know you all got it. नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाना, राइट। जब हम दरवाजे को ठोकेंगे या खटखटाएंगे, इट इज कॉल्ड नॉक। द नेक्स्ट वर्ब इज मोप। मोप, मोप का मतलब होगा पोछा लगाना। जब हम पोछा लगाते हैं फॉर क्लीनिंग आवर हाउस, वी यूजुअली यूज द वर्ब मोप। आई मोप द हाउस डेली इन द मॉर्निंग। मैं हर रोज सुबह पोछा लगाती हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज नेल। Nail. Nail मतलब not this one, because this one is used as a noun and here we are using nail as a verb. Verb के तौर पे जब हम nail का यूज करेंगे तो nail का मतलब होगा नहीं कि नाखून, कीली ठोकना। जब दीवार पर हम कील ठोकते हैं तो उसे कहेंगे nail. She nailed on the wall. उसने दीवार पर कीली ठोक दी, ठीक है। nail के 3 मीनिंग्स हैं। verb के हिसाब से अगर हम यूज करेंगे तो दैट इज नेल मतलब कीली ठोकना। नाउन के तौर पे देयर आर 2 मीनिंग्स। नेल मतलब नाखून एंड नेल मतलब कील। एक कील जो होती है उसे भी हम नेल कहेंगे। नेक्स्ट वर्ब इज पैट। पैट, पैट मतलब थपथपाना या थपकी देना। whenever I secure first rank or whenever I win in the competition, my father usually patted. ठीक है, जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती थी, कंपटीशन जीत जाती थी या रैंक दिलाती थी, तो तब मेरे डैडी मेरी हमेशा पीठ थपथपाते थे, मतलब कि शाबाशी देते थे कि हाँ ब्रावो, वेल डन, राइट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। सो पीठ थपथपाने को भी हम कहेंगे पैट। नेक्स्ट वर्ब इज पंच। पंच, पंच का मतलब होगा मुक्का मारना, ठीक है। व्हेन यू आर फाइटिंग विद समवन यू यूजुअली पंच देम, राइट। इफ आई हैव टू से दैट जब बच्चे लड़ाई करते हैं दे पंच ईच अदर। बच्चे जब भी लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को मुक्काबाजी करते हैं। सो मुक्का मारना मीन्स पंच। द नेक्स्ट वर्ब इज पिंच। पिंच, पिंच का मतलब होगा कि चुटकी काटना, चुटकी लगाना, राइट। मैनी टाइम्स इन माई अर्ली चाइल्डहुड
whenever I was going to school, स्कूल में मेरी फ्रेंड्स रहती थी, तो अगर हमने सेम टू सेम पहना होता था, she usually pinch me, same pinch like that. और अगर सेम नहीं होता था, कभी मैंने न्यू क्लोथ्स पहने, then also she pinch me and she usually say that new pinch. So मुझे तब पता पड़ा कि it is called pinch. Pinch मतलब चिपकी लगाना. Next verb is pamper. Pamper. Pamper का मतलब होगा सहलाना, ठीक है, किसी को लाड़ करना, सहलाना. So I usually pamper my son in the morning because afterwards he'll go to school and I will be back at home by the evening. So मैं ज़्यादातर अपने बच्चे को सुबह ही सहलाती हूँ, प्यार करती हूँ, right? So it is called pamper. Next verb is point. Point. What I am doing here on the board? I am pointing the verb. ठीक है, मैं बोर्ड पर क्या कर रही हूँ? मैं बोर्ड पर पॉइंटिंग कर रही हूँ, ठीक है, मतलब निशाना लगाना या पॉइंट आउट करना, किसी पे ध्यान केंद्रित करना. So that is called point. The next verb is poke. Poke. Poke का मतलब होगा उंगली से कोचना. जब किसी को हमें ध्यान खींचना हो या किसी को कुछ कहना हो कि आप ये ऐसे करो कि वैसे करो, तो हम उसको उंगली से कोचेंगे. सो एट दैट टाइम वी कैन यूज दैट poke. अथवा यूजुअली व्हेन वांटेड टू टेल मी समथिंग एंड इफ आई एम नॉट लिसनिंग ही pokes. ठीक है, अथवा जब भी मैं उसकी बात नहीं सुनती तो वो मुझे क्या करता है, वो मुझे पोक करता है, उंगली कोचता है कि मम्मा प्लीज लिसन टू मी, राइट. द नेक्स्ट वर्ब इज press. Press. Press का मतलब होगा दबाना, okay? So like if I have to say that जैसे मैंने ये piece of paper था, इसको fold कर दिया, so there were many crease. So इससे अगर मुझे उनके सरबट को निकालना हो तो what should I have to do? I have to press it. I have to press it hardly. So for removing the crease, I must have to press it, right? The next verb is slap. Slap. Slap का मतलब होगा चांटा लगाना, राइट. जब कोई गलती करता है या हमें बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है तो हम क्या करते हैं? We slap them, right? Not elders but youngsters, right? या तो बच्चे होंगे तो कई बार हम डांट लगाते जोर से नहीं पिटती, वैसे we slap them. So that is called slap, चांटा लगाना. The next verb is scratch. Scratch. Scratch, right? Did you get that? What I mean to say? Scratch मतलब खुजाना, right? Don't scratch your head while I'm telling you, right? जब मैं ये वर्ब सिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपना हेड खुजाने की जरूरत नहीं है, because you are learning so well. The next verb is snatch. Snatch. Snatch का मतलब होगा छीन लेना, किसी से कोई चीज छीन लेना. It means snatch. So, a thief has snatched a gold chain of woman. एक thief था, उसने क्या किया, एक woman की gold chain को खींच ली, ठीक है. So that is called snatch. Snatch. The next verb is smack. Smack. Smack मतलब थपकी लगाना. थपकी लगाना, ठीक है, चपत लगाना. कई बार ऐसा होता है सामने वाला व्यक्ति अगर हम उससे बात करते हैं, दे आर बिजी इन देयर पर्सनल वर्ल्ड, सो तब हम उन्हें थपकाने के लिए या उन्हें वापस रियल वर्ल्ड में लाने के लिए व्हाट वी डू, वी स्मैक देम. या तो सामने वाले से कोई गलती हो जाए, व्हाइल आई वाज चाइल्ड एंड आई वाज कमिटिंग मिस्टेक थ्रू आउट द लर्निंग, माय मैम यूजुअली स्मैक्ड ऑन माय हैंड, राइट. जब मैं पढ़ती थी कोई गलती हो जाती थी तो मेरी मैम मुझे जाके थपकी लगा देते थे. कम टू नो कि हाँ फाइनली मुझसे कोई गलती हो गई, राइट. सो स्मैक का मतलब होगा चपत लगाना या थपकी लगाना. नेक्स्ट वर्ब इज स्नैप. स्नैप. स्नैप का मतलब होगा चुटकी बजाना, ठीक है. स्नैप योर फिंगर्स विद द ट्यून. आप अपनी चुटकियां कैसे बजाओ, ट्यून के साथ बजाइए. एंड स्नैप का सेकेंड मीनिंग भी होगा जल्दी से फोटो खींच लेना. Please snap me very quickly, okay? Please take my snap. मेरा एक snap बहुत ही जल्दी से ले लीजिए.
सो स्नैप का मतलब होगा जल्दी से फोटो खींच लेना या चुटकी बजाना, राइट? नेक्स्ट वर्ब इज स्ट्रोक। स्ट्रोक, स्ट्रोक के देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स, राइट? स्ट्रोक का मतलब होगा सहलाना, मूंछों को ताव देना, और जब हम कोई नाव चलाते हैं तो वी यूज लाइक चॉपर्स। सो वो चॉपर्स को जब ऐसे हम हिलाते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक द चॉपर्स, राइट? और एन ओल्ड मैन ही वॉज स्ट्रोकिंग हिज मस्टैच व्हाइल आई वॉज पासिंग थ्रू। मैं जब वहाँ से गुजर रही थी तो एक ओल्ड मैन क्या कर रहे थे, अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे या सहला रहे थे, राइट? नेक्स्ट वर्ब इज स्प्रेड। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होगा फैलाना या बिछाना, राइट? सो व्हेनेवर you would like to have bread and butter, first you have to spread the butter on the bread. अगर आपको ब्रेड बटर खाने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्रेड पे बटर को लगाना होगा, फैलाना होगा। स्प्रेड मतलब फैलाना। नेक्स्ट वर्ब इज स्कावर। स्कावर, स्कावर का मतलब होगा मांजना, ठीक है? बर्तनों को हम मांजते हैं, so we will use the verb scour, right? So if I have to say कि बर्तन को धोने से पहले अच्छी तरह से मांजना, before washing clothes, scour them very well or scour them carefully, ठीक है? धोने से पहले उन्हें अच्छे से मांजना। So you can use the verb scour. The next verb is squeeze. Squeeze, squeeze का मतलब होगा नींबू निचोड़ना, ठीक है? अगर मेरे पास लेमन है, मुझे उसमें से जूस निकालना है तो what should I have to do? I have to squeeze it. मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, squeeze करना पड़ेगा। So squeeze का मतलब होगा नींबू निचोड़ना। The next verb is stir. Stir, it is not stir, it is stir, right? अब जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है and I am making lemonade. Lemonade मतलब नींबू शरबत में बना रहे हो। So I have filled it with water. I have added pinch of salt. जैसे कि हमने पहले ही सीखा, pinch मतलब एक चुटकी भरा हुआ, ठीक है? So I had added pinch of salt. I have added pinch of sugar and squeezed lemon. But what the next? Is my lemonade ready? No, I have to mix it well. तो उस lemonade को mix करने के लिए I have to take the spoon and stir it well. मुझे उसे stir करना पड़ेगा, चमची से उसे अच्छे से हिलाना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से mix हो जाए। So stir का मतलब होगा चमची से हिलाना, या तो फिर जब आप सब्जी बनाते हो तो एक चमचा, so आप उसे stir करते हो अपने बैचेस को ताकि उसमें सारे spices, salt, everything it will mix well. The next verb is swim. Swim, swim का मतलब होगा तैरना, ठीक है? So swim in the water, or while you are swimming in the river, be careful because वहाँ पर क्या होगा, उसका खुद का flow होगा. So you must have to be careful while swimming in the river. The next verb is sweep. Sweep. Sweep means झाड़ू लगाना. For cleaning your house, you must have to sweep and then mop. ठीक है? आप जब अपना घर साफ कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको झाड़ू लगाना रहेगा एंड देन आप उसमें पोछा लगा सकते हो। The next verb is scrub. Scrub. Scrub का मतलब होगा घिसना या रगड़ना, ठीक है? To clean my wall, I scrubbed them. मैंने अपनी वॉल को चमकाने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या किया? I have scrubbed them. मैंने उनको रगड़ दिया। So the next verb is स्लीट. स्लीट, स्लीट का मतलब होगा किसी चीज को चीरना या फाड़ना, ठीक है? चीरना, सॉरी, नॉट फाड़ना बट चीरना, दो भागों में कर देना। लाइक अ क्लॉथ, इफ आई हैव द क्लॉथ आई स्लीट इट, मैं उसको एक चीर दूंगी ताकि वो दो भागों में हो जाए। इवन यू कैन स्लीट सम अदर थिंग्स लाइक फ्रूट्स और समथिंग जिसे आप चीर दोगे, राइट? द नेक्स्ट वर्ब इज थ्रो. थ्रो, थ्रो का मतलब होगा फेंकना. इफ आई विल थ्रो द पैन, यू ऑल हैव टू कैच इट, राइट? और डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन एनी डोर स्टेप, ठीक है? आप
अपने कचरे को किसी और के दरवाजे पर कभी मत डालिए। द नेक्स्ट वर्ब इज टिकल। टिकल, टिकल मतलब गुदगुदी करना या किसी को हंसाना। जब मुझे किसी को, मेरे पास अगर जोक नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू मेक अदर्स हैप्पी और हाउ टू मेक अदर्स लाफ, मैं क्या करूँगी, आई जस्ट टिकल देम, उन्हें हंसाने के लिए गुदगुदी करूँगी। द नेक्स्ट वर्ब इज tie. Tie. It's not tie which we are wearing. It's a tie as a verb जब हम एक धागे को बांधेंगे या किसी डोरी को बांधने के, तो बांधने के लिए जो verb यूज होता है, at the time we have to say tie. Tie your shoelace. Okay? Tie your shoelace or tie the knot. Right? अगर मैंने कोई धागा बांध रखा है, मेरे पास कोई धागा है, मुझे किसी से बंधवाना है, so please tie my thread. Please tie the knot. आप उसे गांठ बांध दीजिए। So the next verb is ring. 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 It's kind of same sound, but the W is silent. यहाँ पर W है, but वो वहाँ पर silent रहेगा। So it is called ring. Wring the clothes before drying them out. कपड़ों को सुखाने से पहले आपको क्या करना रहेगा? निचोड़ना रहेगा। So we had learned two verbs related to निचोड़ना। While you are जैसे कि आप लेमन को निचोड़ रहे हो, we don't have to use wring the lemon, we have to use squeeze the lemon, right? But when you are talking about clothes, आप अगर कपड़ों को निचोड़ रहे होंगे तो then we have to say that wring the clothes, क्योंकि अभी तो जैसे कि जमाना है where everybody they have washing machines at their home, so I don't think कि कोई कपड़ों को निचोड़ता होगा, but in many cases जैसे किसी के यहाँ अगर वॉशिंग मशीन नहीं है और उन्हें कपड़ों को सुखाना हो, तो वो क्या करेंगे, उन्हें अच्छे से निचोड़ लेंगे। They will wring them well, ताकि कपड़े अच्छे से और जल्दी सूख जाएं। So wring मतलब निचोड़ना। The next verb is whack. Whack. Whack का मतलब होगा टीपना या लकड़ी से पीटना, right? Like मैंने कई बार देखा है कि मैट्रेस जो बनाते हैं स्पेशली कॉटन की, नॉट स्पंज, जैसे कि स्पंज वाली रहती है तो उसमें तो ये ज़रूरत नहीं रहती है, बट जब मैट्रेस लोग कॉटन की बनाते हैं तो वो कॉटन को पफ आउट करने के लिए क्या करेंगे, उस पर लकड़ी से मारेंगे, पीटेंगे, ताकि वो एकदम पफी हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। सो आई हैड सीन अ मैन हु वॉज वैकिंग द पिलो टू पफ देम आउट। मैंने एक आदमी को देखा जो पिलो पे पीट रहा था लकड़ी से, ताकि वो अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। द नेक्स्ट वर्ब इज वेव। वेव, वेव का मतलब होगा एज अ वर्ब हाथ हिलाकर बाय बाय करना। अब जैसे हमें कहना हो कि उसने मुझे बाय बाय किया, शुड वी यूज द सेम वर्ब, शी बाय बाय एट मी? नो, उसने मुझे बाय बाय किया, बाय बाय तो इट इज अ वर्ब विच वी आर यूजिंग टू शो द जेस्चर, बट हाउ टू जस्ट कन्वे इट। अगर मुझे किसी को कहना हो, आई मस्ट हैव टू से दैट शी वेव्ड एट मी, उसने मेरी तरफ हाथ हिलाकर मुझे बाय बाय किया, शी वेव्ड एट मी, राइट? सो वेव का मतलब होगा बाय बाय करना। द नेक्स्ट वर्ब इज वीव। वीव, वीव, इट इज नॉट द लास्ट और इट इज नॉट लास्ट और द लीस्ट, बट यू कैन यूज इट फॉर वीविंग द क्लोथ। जब हमें कपड़ा बुनना हो, क्योंकि हमें पता है हर कपड़ा धागों से बना रहता है, और वो कपड़ा बनाने के लिए जो वीवर्स होते हैं वो उस धागों को एक के ऊपर एक वीव करते हैं, जिससे कि वो कपड़ा बुन जाए और वो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए। सो वीवर यूजुअली वीव्स द क्लॉथ, ठीक है? जो वीवर्स होते हैं, कपड़ा बनाने वाले होते हैं, बुनने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कपड़े को वीव करते हैं, धागों को इकट्ठा करके उनको एक के ऊपर एक सेट करके मशीन से, वीविंग मशीन होती है, उससे एक बढ़िया सा मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग कपड़ा बना देते हैं। सो दीज आर द कलेक्शन एंड the verb which you all are willing to learn. So today we have covered almost 50 words here, which I hope you all have enjoyed and you are going to use it in your speaking session to make your English on the fluent level or to make your language more fluent. Thank you so much for listening. Happy to see you and watch my video, give your comments and also learn with fun. Bye bye. Take care.
Bye.